Okay, good morning, good morning. So, today we are taking classes in the morning. In last class, I have discussed with you first phase of revolutionary activities, right? So, in today's class, I will discuss with you second phase of revolutionary activities, and then we'll discuss Ghadar movement separately. Okay. So, today's discussion is focused upon second phase of revolutionary activities in India. Second phase of revolutionary activities in India. Okay. Basically, in these discussions, first we have to understand the change. Okay. About the change. That what is the basic change in approaches, ideologies of the revolutionaries between first phase and second phase. This is the concept part. कि क्या चेंज आया फर्स्ट और सेकेंड फेज में. तो चेंज कंपैरिजन ऑफ द चेंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड फेज. एक तो ये देखना है. गॉट इट. And in second phase, there are almost I can say that there are three examples that are very much important. ठीक है. And these are organizations में एक है HRA, the second one is HSRA. ठीक है. And the revolutionary activities carried out by these organizations HRA and HSRA. ठीक है. इन्होंने कौन सी revolutionary activities की. इसके अलावा there is the third important one, that is Chittagong Armory Raid. Okay, तो ये तीन सबसे important है. First, second and the third is Chittagong Armory Raid. Chittagong Armory Raid. एक तो ये है. And the third important thing that we have to understand here is outlook of revolutionary, especially भगत सिंह. ठीक है. भगत सिंह का आउटलुक क्या था. ठीक है. वो क्या सोचते थे. तो these three basic things we need to know. That what was the outlook of revolutionaries like Bhagat Singh. Bhagat Singh. What was the ideology of Bhagat Singh? ठीक है. Outlook और ideology of Bhagat Singh. So basically our discussion will be focused on these core issues. And in exam when you will get question, all the questions will be around these three concepts. ठीक है ना. इसी के आसपास से आपको questions मिलेंगे. But in class I will discuss some facts also and along with the concepts. तो थोड़ी discussion लंबी होगी, but question इसी के आसपास से आपको मिलेंगे. ठीक है ना. गदर मूवमेंट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन आउटलुक. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. फर्स्ट पार्ट का आउटलुक क्या था. इज इट क्लियर. यू ऑल दैट व्हाट वाज द आउटलुक इन द फर्स्ट पार्ट. पता था ना. कल्ट ऑफ रिवॉल्वर एंड बॉम्ब एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है ना. तो क्या वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा कि वो कंटिन्यू रहेगा. रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी है. ठीक है. वो तो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा ना, बट दैट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. मेरी बात समझ गया ना. यानी इन फर्स्ट फेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट. इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन. ठीक है. मेरी बात समझ गया ना. ये सबसे बड़ी बात है. इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन. इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर अ वर्ड इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब अकेले, अपने दम पे कुछ जाके आपने कर दिया. ठीक है ना. ये हो गया इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन. जब आप सेकेंड फेज में आते हो, इन सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी, so you will see a major shift here, and that is what. Here you will see mass based movement of the revolutionaries. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. mass based movement of the revolutionaries. mass based movement of the revolutionaries. mass based movement of the revolutionaries. देखो यहाँ कुछ डिफरेंस दिखा आपको. यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी और यहाँ पे अप्रोच क्या हो रहा है. चेंज हो रहा है. मास बेस्ड मूवमेंट. बट क्या वो इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा. हाँ, कहीं कहीं वो देखने को मिलेगा. बट वो मेजर शिफ्ट क्या है कि इंडिविजुअल से क्या हो जाएगा. मास बेस्ड हो जाएगा. अच्छा, इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड और नॉट. यस, इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड प्लस आइडियोलॉजिकल सपोर्ट. ओके, ये भी आ जाएगा. तो सेकेंड चेंज दैट वी नोटिस हियर इज इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड नाउ. ये पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा. एंड कैसे कह सकते हैं कि इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड नाउ. सो इट इज अंडर सम आइडियोलॉजिकल influences. We will discuss those ideologies. Now, this revolutionary activity in the second phase was under some ideological influences. ठीक है. और इस पे सीधा सीधा किस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट होगा. सोशलिज्म,
communism, okay, under these ideological influences. पहले फेज में क्या ऑब्जेक्टिव है रिवॉल्यूशनरीज का? टू अप्रूव ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. दूसरे फेज में क्या है? ये ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, टू अप्रूव ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. बट द सेकेंड थिंग इज, आफ्टर अप्रूविंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, which kind of political structure we will develop, which kind of society we will develop, which kind of economy we will develop. ये किस फेज में सोचना शुरू कर देते हैं? सेकेंड फेज में. तो बताओ डेवलपमेंट है कि नहीं? पहले फेज में क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इन फर्स्ट फेज, यू कैन राइट हियर, ऑब्जेक्टिव इन फर्स्ट फेज. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज ओके टू अप्रूव ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, टू अप्रूव ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, यही ऑब्जेक्टिव है. एंड द सेम ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूड हियर आल्सो. यही ऑब्जेक्टिव यहां भी कंटिन्यूड है. द सेम ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूड हियर आल्सो. द सेम ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूड हियर आल्सो. वो ऑब्जेक्टिव यहां भी है. बट व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू और एडिशनल पॉइंट हियर? तो नया क्या है? नया क्या है? राइट दिस, द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सेटअप, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोसाइटी आफ्टर अप्रूविंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. दे विल आल्सो गिव दिस आइडिया. ठीक है, द आइडिया ऑफ अ गवर्नमेंट, which kind of political setup will be there, okay, right, which kind of society we are going to discuss, develop. So this idea, और यहाँ पे ये इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? रेवोल्यूशन. ठीक है, नाउ दे विल कंसीडर देयर फाइट और अप्रूविंग फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एज अ रिवॉल्यूशन. ये इसको क्या समझेंगे सेकेंड फेज में? रिवॉल्यूशन. सुभाष चंद्र बोस खुद कहते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया आर नॉट द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म. ठीक है, basically this is a kind of revolution where the Indians are participating in this revolution to ensure the freedom or independence of India. इसको आतंकवाद आप नहीं कह सकते, because the nature of violence is what? Limited. मेरी बात समझ गया ना? और वो लिमिटेड वायलेंस होता ही है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी हुआ था. तो कहा ये टेररिज्म कैसे हो गया? आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन दिखता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी का प्रोसेस आपको रिवॉल्यूशन दिखता है, और इंडिया में आपको टेररिज्म दिखता है. कहीं टेररिज्म है, कहीं टेररिज्म नहीं है. दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने डिफेंड किया रिवॉल्यूशनरीज की टेंडेंसीज को. गॉट इट? नाउ वी आर एंटरिंग into the next phase. The one concept I have already discussed with you, that after suspension of non-cooperation movement, what will happen? Suspension के बाद क्या होगा? Okay, now the revolutionary activities will restart again. अब दोबारा से revolutionary activities restart हो जाएंगे. ठीक है, because now the revolutionaries are disappointed. अब revolutionaries क्या हो गए हैं? They are disappointed. Why they are disappointed? Because earlier they believed in the faith and capacity of Gandhi, that Gandhian non-violent means will be able to ensure Swaraj for the Indians, but it was not possible. तो उन्होंने सोचा यार अब अपना तरीका हमें क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, गांधी के नॉन वायलेंट मीन्स से काम नहीं चलने वाला है. दिस इज द पॉइंट. ठीक है ना? नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 1922? ओके, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ एनसीएम, राइट दिस 1922. आफ्टर 1922, after suspension of NCM, suspension of non-cooperation movement, revolutionary activities will revive again. After suspension of NCM, revolutionary activities will revive again. ठीक है? And this time the objective of revolutionary activities will be what? जैसे देखो क्या है, there was an alternative idea आफ्टर सस्पेंशन ऑफ एनसीएम, और वो अल्टरनेटिव आइडिया क्या था? काउंसिल एंट्री पॉलिटिक्स. बट दिस काउंसिल एंट्री पॉलिटिक्स डिड व्हाट? इट फेल्ड टू अपोज द रिवॉल्यूशनरीज. ये रिवॉल्यूशनरीज को अपीज नहीं कर पाया. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? दे विल सजेस्ट सम अल्टरनेटिव मेथड्स. फॉर एग्जांपल, देयर वाज वन रिवॉल्यूशनरी, नेम ऑफ दैट रिवॉल्यूशनरी वाज राम प्रसाद बिस्मिल. ठीक है, तो ही डिड नॉट he was not happy or he was not satisfied with the idea of council entry program. उससे वो खुश नहीं थे. Then he suggested that we will form a new party. उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, जिस पार्टी का नाम था रिवॉल्यूशनरी पार्टी. पार्टी का ही नाम क्या था? रिवॉल्यूशनरी
पार्टी। अच्छा, हर पार्टी का अपना एक ड्राफ्ट होता है। जैसे मान लो कि अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, उनका एक पूरा का पूरा पार्टी का जो प्रोग्राम का एक उनकी मीटिंग होती है, उसकी पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग होती है। तो पार्टी ने अपना एक ड्राफ्टिंग तैयार किया जिसको येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, और उस पे डिस्कशन के लिए मीटिंग कानपुर में हुई 1924 में। और कानपुर में जब मीटिंग होती है तो उसी मीटिंग में एक नए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। You can use both these two words and the story is very interesting. Okay, so you can write here that, read this: revolutionaries could not be appeased. Revolutionaries could not be appeased. Revolutionaries could not be appeased. इनको अपीज नहीं किया जा सका। किस चीज से? could not be appeased with council entry program, with council entry program which was an alternative program. ये council entry program क्या था? which was an alternative program, which was an alternative program. Revolutionaries could not be achieved, could not be appeased with the council entry program which was an alternative program, जो कि एक alternative program था। मेरी बात समझ गया? तो they did what? Read this example. Example: राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, he was what? A revolutionary. ब्रैकेट में लिख देना आगे R, तो जिससे आपको पता होगा। जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, उनके नाम के आगे क्या लिख दो? E। कम्युनिस्ट लीडर है, अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो नाम के आगे लिख दो C, बिकॉज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर द कम्युनिस्ट लीडर्स। जैसे एक नाम तो आपको पता हो गया, MN रॉय, बताया था ना, क्लास में डिस्कस किया था ना। तो ऐसे मुश्किल से 10 to 15 नेम्स इफ यू नो, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज हो जाता है। ठीक है, और एक दो पॉपुलर नेम्स होते हैं, बाकी कुछ ऐसे दे देते हैं। तो दिस इज राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। तो राइट दिस: ही फॉर्म्ड अ पार्टी, formed a party, formed a party, and the name of this party was Revolutionary Party. Revolutionary Party. Formed a party. The name of this party was Revolutionary Party. ठीक है, Revolutionary Party. And a meeting of this Revolutionary Party meeting will be held in Kanpur. Will be held in Kanpur. The year was 1924. Meeting of this party will be held in Kanpur. The year was 1924, and here in the same meeting led the foundation of HRA. It led the foundation of HRA. यहीं पे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एसोसिएशन का जन्म होता है। The month was October, but you don't need to remember the month if you are not appearing in state PCS exam. ठीक है, अक्टूबर 1924 याद कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। The event is October 1924. And yeah, who formed this HRA? तो एक नाम तो वही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। उस नाम को हम बाहर निकाल ही नहीं सकते। He was the most important person, क्योंकि ये चेन ऑफ इवेंट्स है। रिवॉल्यूशनरी पार्टी से शुरू होती है और कहाँ पहुंच जाती है? HRA पे। तो राइट दिस: फाउंडर्स, HRA was set up by, now this is the fact, HRA was set up by, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों जानने हैं आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट नेम, सबसे इंपॉर्टेंट नेम क्या होता है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, राम प्रसाद बिस्मिल, पहला इंपॉर्टेंट नेम। द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम इज सचिंद्र नाथ सान्याल, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम, सचिंद्र नाथ सान्याल। फर्स्ट इज राम प्रसाद बिस्मिल, the second important name is Sachindranath Sanyal, and the third important name is Jogesh Chatterjee. The third important name is Jogesh Chatterjee. Jogesh Chatterjee. This revolutionary Sachindranath Sanyal had written a very important book. ये पूछा भी जाता है, and the name of that book is Bandi Jeevan. Bandi Jeevan, and this book was very popular among the revolutionaries. Okay, इसको टेक्स्ट बुक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज भी कहा जाता है, मतलब हमेशा उसको लेके चलते।
ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। जैसे आपकी पॉलिटी की क्या है टेक्स्ट बुक, लक्ष्मीकांत सारे बच्चों के पास मिलेगी, वैसे ही बंदी जीवन सारे रिवॉल्यूशनरीज के पास मिलेगी। इट वाज द टेक्स्ट बुक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है ना। नाउ अब इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या खास बात है, कुछ नोटिस किया आपने? इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे फर्स्ट फेज में वो रीजनल थे, अभिनव भारत, जुगांतर, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस वेर रीजनल। सेकेंड फेज में जो पार्टी आती है रिवॉल्यूशनरीज की, इट इज व्हाट, एच लिखा हुआ है ना, एच का मतलब क्या है, हिंदुस्तान, इट्स का मतलब क्या है, ऑल इंडिया। सो दिस इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, दिस इज द चेंज इन सेकेंड फेज। मेरी बात समझ गया ना। तो हिंदुस्तान इट मीन्स राइट दिस, इट वाज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, ये रिवॉल्यूशनरीज का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरए का, तो पुराना वाला ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू हो जाएगा, टू अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, राइट दिस। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, टू अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव यहीं तक लिमिटेड होगा कि यहाँ पे एक विजन भी होगा, विजन भी है। पहले क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों को भगा दो, उसके बाद क्या होगा बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक विजन भी है, एक क्लैरिटी ऑफ विजन, so read this, प्लस देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ विजन दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट, इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ओके तो आगे क्या होगा, तो देखो अ न्यू गवर्नमेंट विल बी सेटअप, ठीक है। और ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया में जितने भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन है उन सभी एक्सप्लॉयटेशन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, है ना। पीजेंट लेबर, ठीक है, ये और ऑर्गेनाइज होंगे, पीजेंट लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सारी बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन सोशलिज्म की तरफ है कि नहीं, बट यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड नहीं लिखा गया है, मेरी बात समझ गया ना। अच्छा इसके बाद एक गवर्नमेंट भी बना है, वी नीड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑल्सो। अच्छा इफ यू विल मेक अ गवर्नमेंट सो यू विल नीड एन आर्मी ऑल्सो, गवर्नमेंट के साथ साथ आपको आर्मी भी चाहिए होगी। दे आर सेइंग व्हाट, एसोसिएशन, एंड इट हैज टू मीनिंग्स, वन इज एसोसिएशन एंड द सेकंड इज आर्मी। सो अगर आप एक गवर्नमेंट बनाओगे तो यू नीड एन आर्मी ऑल्सो, ठीक है। एंड फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू नीड व्हाट, मनी, फाइनेंस, पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा, तो दैट मनी विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट। पता था स्वदेशी डकैतीज, पॉलिटिकल रॉबरीज, पॉलिटिकल रॉबरीज से वो पैसा आएगा, पॉलिटिकल रॉबरीज से वो हथियार भी आएगा। हथियार क्यों चाहिए, वाई आर्म्स आर नीडेड, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट अ वॉर विद द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, सो दिस वॉर विल बी व्हाट, नॉन वायलेंट वॉर होगा क्या, वो तो करके देख लिया ना हमने, गांधी ने करके ट्राई कर लिया ना नॉन वायलेंस, तो इनका कहना वो तो ट्राई कर लिया गांधी बाबा ने, तो अब हमें क्या करना है, आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन अगर होगा तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, हथियार की जरूरत होगी, आर्म्स की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। वो कैसे आएगा, वो डकैती से आएगा, पॉलिटिकल रॉबरीज से आएगा। तो इनका स्टैंड बड़ा क्लियर था इस मामले को लेके। सो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो राइट दिस, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन में राइट दिस पॉइंट वन, ओके, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, ओके, क्रिएटिंग आर्मी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए आर्मी को क्रिएट करना, क्रिएटिंग आर्मी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए आर्मी को क्रिएट करना, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, क्रिएटिंग आर्मी फॉर द इंडिया, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ओके, प्रोटेक्टिंग, एंडिंग all kind of discriminations, all kind of discriminations that were present in Indian society, सभी तरह के भेदभाव को खत्म करना, ending all kind of discrimination, okay, ending all kind of discrimination that was present in the Indian society, Indian society में जितने discriminations थे सबको खत्म करना है, right, 4 point, protecting the rights of peasant and workers, protecting the rights of peasants and workers, protecting the rights of peasants and workers, peasants और workers के rights को protect करना है, got it?
And all this, write this, or next point, all this will require, all this will require फाइनेंस प्लस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. इन सब के लिए जरूरी क्या क्या होगा? फाइनेंस प्लस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. फाइनेंस प्लस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ये दोनों सब चाहिए. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल दिस यू नीड टू डू व्हाट? एन आर्म्ड रिबेलियन. क्या करना होगा आपको? एक आर्म्ड रिबेलियन करना होगा. ठीक है. एंड फॉर दिस व्हाट इज नीडेड? फाइनेंस. फॉर दिस व्हाट इज नीडेड? वेपन्स. And need for finance and weapon will be completed through political robberies. Political robberies. Need for this finance and weapons could be completed through political robberies, that is known as Swadeshi dacoities. Political robberies, that is known as Swadeshi dacoity. Revolutionaries की एक और खास बात है, रिलीजियस लाइन पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. इट मीन्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो मुस्लिम लीग कह रही थी मेरे को चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम. इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम नहीं मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा दलित वाला मुद्दा आपको याद ही है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इट मीन्स द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया आर सेकुलर इन नेचर. दे आर नॉट डिवाइडेड ऑन द रिलीजियस लाइन्स. सबसे बड़ी बात है. So this is what? A kind of secular patriotism. Right? This is a very important point. Right? That revolutionary activities in India were not divided on religious lines. ठीक है. They were not divided on religious lines. They were not divided on religious lines. Revolutionary activities in India were not divided on religious lines. Okay. They were the example of secular patriotism. They were the example of secular patriotism. ठीक है. No bitterness between Hindu revolutionaries and Muslim revolutionaries. कोई bitterness नहीं है. No bitterness between Hindu revolutionaries and Muslim revolutionaries. ऐसा कोई भी bitterness हमें देखने को नहीं मिलता है. Got it? Now we are coming to the next part. तो क्या करना है? स्वदेशी रॉबरी करनी है, पॉलिटिकल रॉबरी करनी है. तो नाउ example of this you can write. Example of this is Kakori robbery case. Kakori robbery case. Kakori robbery case. बाद में इसका नाम थोड़ा बदल दिया गया. इसको कहा गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी. काकोरी कॉन्स्पिरेसी. काकोरी कॉन्स्पिरेसी. फिर यूपी में आया बाबा ने और नाम बदल दिया. नाम क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन डे. और अच्छी चीज है ये. ओके. नाउ द नेम इज व्हाट? काकोरी ट्रेन एक्शन डे. काकोरी ट्रेन एक्शन डे. तो मुझे तो यही वाला नाम सबसे अच्छा लगता है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे. ठीक है. इट वॉज 9 अगस्त 1925. तो लिख सकते हो यहाँ कि 9 अगस्त 1925. ठीक है ना. काकोरी ट्रेन एक्शन डे. तो यू विल यूज दिस वर्ड काकोरी ट्रेन एक्शन डे. दिस इज द न्यू नेम. नाउ व्हाट वाज द इंसिडेंट वी नीड टू डिस्कस. ठीक है. तो इंसिडेंट देखो क्या है. There was a train, okay, and this train was carrying, okay, the some money plus arms and weapons of British army. ठीक है. British authorities के कैश थे इसमें, है ना. There was cash, some arms and ammunitions in a train. And this train, this is right, this train देखो. ट्रेन का ओरिजिन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. तो ट्रेन का ओरिजिन क्या है? ओके. सो राइट, सहारनपुर. सहारनपुर. सो ओरिजिन स्टेशन इसका है सहारनपुर. और ट्रेन को पहुंचना कहाँ था? लखनऊ. ओरिजिन स्टेशन वाज सहारनपुर. ट्रेन को पहुंचना कहाँ था? लखनऊ. ठीक है. और लखनऊ के पास एक प्लेस है जिसका नाम है काकोरी. काकोरी. ठीक है. काकोरी. सो द ट्रेन वाज स्टॉप्ड एंड रूटेड हियर. ठीक है. इट वाज ठीक है.
द नेम ऑफ दिस ट्रेन वॉज 8 डाउन ट्रेन. इस ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन. 8 डाउन ट्रेन. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सहारनपुर and the destination was Lucknow, and the train was looted by revolutionaries at Kakori. Kakori में इस ट्रेन को रोका गया. It was stopped and looted, and that's why this is called what? Kakori Train Action Day. This happened on 9th August 1925. So you can write here, the train was stopped and looted by the train was stopped and looted by a group of revolutionaries at Kakori. The train was stopped and looted by a group of revolutionaries at Kakori. ठीक है, काकोरी. ये घटना है. नाउ व्हाट विल हैपन? ऑब्जेक्टिव क्यों लूटा गया अब तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी था. भाई आर्म्स एक्ट लगा था, आप हथियार रख नहीं सकते. मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो धीरे धीरे अपलोड करूंगा उसको भगत सिंह पे, है ना. तो उसमें साफ साफ रिवॉल्यूशनरीज ने एक मैसेज दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप आर्म्स एक्ट लगा लो, आप हथियारों की स्मगलिंग को रोक लो, आर्म्स की स्मगलिंग को रोक लो, चाहे कुछ भी कर लो, है ना. हमारे पास जो फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ वेपन्स है ये हमेशा बना रहेगा. ठीक है. और बी अवेयर टायरेंट, ऐसा वो लिखते थे, है ना. बी अवेयर टायरेंट, है ना. वी विल नॉट लीव यू, वी विल टेक आवर रिवेंज. तो ये अप्रोच था रिवॉल्यूशनरीज का. मेरी बात समझ गया? तो दिस वाज द. अब ना इसमें देखो क्या है. ऑब्वियसली दिस वाज अ टास्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, है ना, जिसमें कुछ लोगों को ब्रिटिश पुलिस अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया, ट्रायल चला. ठीक है, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज अरेस्ट हुए. और इस घटना के बाद जो एचआरए ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फाउंडर भी हैं राम प्रसाद बिस्मिल. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी बैंड और नॉट? इस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन हो गया कि नहीं? हो जाएगा ना. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट हियर. राइट दिस. आफ्टर दिस इवेंट एचआरए वाज बैंड and many revolutionaries were arrested and tried. Many revolutionaries were arrested and tried. Many revolutionaries. Tried means उन पे मुकदमा चला, right? Many revolutionaries were arrested and tried. ठीक है. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, वो देर आर 4 नेम्स. वाई दीज 4 नेम्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस केस में उनको क्या हुआ? डेथ सेंटेंस मिल गई. ठीक है. सो दोज 4 नेम्स आर इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 4 नेम्स की काकोरी केस में कौन इन्वॉल्व था. अगर आपको ये 4 नेम्स भी पता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो राइट दिस. काकोरी ट्रायल, ऐसे लिख लो, काकोरी ट्रायल, डेथ सेंटेंस, काकोरी ट्रायल और डेथ सेंटेंस. एंड नाउ यू विल राइट द नेम ऑफ रिवॉल्यूशन जिनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलती है. क्लियर? वो कौन कौन से हैं? तो एक नाम तो वही हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल का. राइट दिस. वन नेम इज राम प्रसाद बिस्मिल. ठीक है. द सेकेंड नेम इज अशफाकुल्ला खान. द सेकेंड नेम इज अशफाकुल्ला खान. अशफाकुल्ला खान. द थर्ड नेम इज रोशन सिंह. Fourth name is Rajendra Lahiri. Third name is Roshan Singh, and the fourth name is Rajendra Lahiri. Rajendra Lahiri. These are the 4 important names. Rajendra Lahiri. ठीक है. चंद्रशेखर आजाद was also named. इसमें चंद्रशेखर आजाद का भी नाम था, बट चंद्रशेखर आजाद somehow managed to escape. वो निकल गए. ब्रिटिश authorities could not arrest him. उन्होंने कहा था मुझे जिंदा रहते हुए तो तुम अरेस्ट कर ही नहीं सकते. फाइनली व्हाट हैपेंड इन इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज नाउ, उसका भी नाम बदल दिया गया है. ठीक है. तो इन अल्फ्रेड नेशनल पार्क, ओके, इन देयर वाज अ पुलिस एनकाउंटर एंड व्हेन चंद्रशेखर आजाद विल फाइंड दैट अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, देन ही विल शूट हिमसेल्फ. अच्छा, उनके मरने के बाद भी जब अंग्रेज उनके नजदीक गए तो उनको डर था कि कहीं दोबारा उठ के खड़ा हुआ तो 2-4 लोगों को निपटा देगा. तो पहले क्या किया? शूट किया उनको और फिर मतलब वेरीफाई किया कि ही इज डेड और नॉट. ठीक है. तो ये टेरर था रिवॉल्यूशनरीज का. तो यू कैन राइट हियर दैट चंद्रशेखर आजाद वाज आल्सो नेम्ड हियर. चंद्रशेखर आजाद वाज आल्सो नेम्ड इन दिस केस. Named in this case, but somehow he escaped the arrest.
किसी भी तरह से वो इस अरेस्ट से बच गए. चंद्रशेखर आजाद was also named but somehow he escaped the arrest. अब इसमें कौन है? Who is the most important leader here? राम प्रसाद बिस्मिल. दूसरी चीज देखो, क्या हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई सिर्फ हिंदुओं ने लड़ी? क्या नाम है? अशफाकुल्ला खान. मेरी बात समझ गया ना? सो हिंदूज मुस्लिम्स ऑल फॉट टुगेदर. वो रिवॉल्यूशनरीज भी थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग का अपना एक अलग पॉलिटिक्स था, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रगल में. बट इंडियन नेशनल कांग्रेस, देयर वर मेनी हिंदूज एंड देयर वर मेनी मुस्लिम लीडर्स, ओके, हु ऑलवेज अपोज्ड द आइडिया ऑफ टू नेशन थियरी. हमेशा उन्होंने अपोज किया, जिन्होंने बैलेंस पॉलिटिक्स की बात की. अब बता दो ऐसे 4 मुस्लिम लीडर्स का नाम जिन्होंने बैलेंस पॉलिटिक्स की बात की. नहीं पता है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों का नाम याद ही नहीं रहता. ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये पूरा का पूरा आइडिया है. अब देखो, व्हेन राम प्रसाद बिस्मिल वाज अरेस्टेड एंड ही वाज इन जेल, तो रिवॉल्यूशनरीज से वो इंटरेक्ट करते थे. सो ही विल गिव अ मैसेज टू द रिवॉल्यूशनरीज. एंड व्हाट इज दैट मैसेज? That this part is very much important. What is the message? Ram Prasad Bismil said that if we will not change our strategy, the British authorities can easily suppress us or crush us. अगर हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली नहीं तो ब्रिटिश अथॉरिटीज हमें आसानी से क्या कर देंगी? सप्रेस कर देंगी या क्रश कर देंगी. राम प्रसाद बिस्मिल सेड दैट द स्ट्रेटजीज दैट वी फॉलोड वाज अ मिस्टेकन स्ट्रेटजी. जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया वो कैसी स्ट्रेटजी थी? ध्यान से समझना मेरी बात को. मिस्टेकन स्ट्रेटजी थी. क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद, इस पॉलिटिकल रॉबरी के बाद क्या हुआ? आवर पार्टी वाज आल्सो बैंड, एचआरए वाज आल्सो बैंड. इज इट क्लियर? एचआरए को भी बंद कर दिया गया. और क्या किया गया? एचआरए का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर और फाउंडर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल. ऑल रिवॉल्यूशनरीज वर ट्राइड एंड वर गिवन डेथ सेंटेंस. कहा फिर आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? का अगर इस मेथड को फॉलो करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे और कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करोगे, आप पे चार्जेस लगा के ब्रिटिश पुलिस अथॉरिटीज आपको अरेस्ट कर लेगी, लीडर को अरेस्ट कर लेगी, लीडर को एग्जीक्यूट कर देगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देगी? बैन कर देगी. इससे आपका ये जो मतलब तरीका है, आपका जो सपना है, आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे. राम प्रसाद बिस्मिल ने साफ साफ कहा. राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत है. तो वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजी एंड इंस्टीड ऑफ सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज लाइक दिस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी और रॉबरी, इसकी जगह वी नीड टू यूनाइट द मासेस. मासेस को यूनाइट करना है. मेरी बात समझ गया ना? एंड व्हेन मासेस विल बी यूनाइटेड अंडर योर पॉलिटिकल बैनर, गॉट इट? इन दैट केस यू कैन इजिली बार्गेन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है? तो फर्स्ट वी विल हैव टू बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस. ये काकोरी ट्रेन एक्शन की तरह कोई इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन नहीं करना है. हमें सबसे पहले पीजेंट्स, वर्कर्स, इन सबको क्या करना है? यूनाइट करने की जरूरत है. क्या ये वही स्ट्रैटेजी है जिसकी बात गांधी कह रहे थे? मास मूवमेंट. मेरी बात समझ गया ना? तो वाई गांधी वॉज प्रीचिंग द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस? व्हेन यू रीड रिवॉल्यूशनरी यू विल गेट द आंसर बाय इटसेल्फ. कि गांधी नॉन वायलेंस की बात क्यों कर रहे थे 1922 में? दिस ईयर इज व्हाट? 1924, 25, ये ईयर है ना? और राम प्रसाद बिस्मिल एडमिट्स कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है? मास मूवमेंट वाला, है ना? लोगों को जोड़ना है, ठीक है, एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करना और उसके बाद आर्म्ड रिबेलियन का सपना पूरा होगा. अभी नहीं. दिस इज नॉट राइट टाइम. जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते हो. तो गांधी की फिलॉसफी सही थी या गलत थी, ये बात किसने बताया? खुद इसका आंसर किसने दे दिया? रिवॉल्यूशनरीज ने. और हम लड़ते रहते हैं आपस में कि गांधी अच्छा कि रिवॉल्यूशनरी अच्छा. ठीक है? राइट दिस पॉइंट. ओके, इस बात को लिखो. लिखो, व्हेन राम प्रसाद बिस्मिल वाज इन जेल, when Ram Prasad Bismil was in jail, when Ram Prasad Bismil was in jail, he had a changed outlook. He had a changed outlook. उनका एक बदला हुआ दृष्टिकोण था. He had a changed outlook. And what is that changed outlook? Okay, he had a changed outlook. Read this. Changed outlook. Right. Point one. वो changed outlook क्या था? और ये आर्ग्यूमेंट आप यूज करोगे in order to defend Gandhian mass movements. ठीक है ना? What is the change outlook? Right, point one. Okay. Secret conspiracies
right? Secret conspiracies plus individual heroic action plus individual heroic action plus political robberies. Okay, this method will not be successful. This method will not be successful in securing the independence of India. This method will not be successful in securing the independence of India. कितना आसान है. Secret conspiracies, individual heroic action, okay, political robberies. This method will not be successful in ensuring the independence of India. ठीक है. क्या करना होगा इसके लिए? First we will have to write unite the masses. सबसे पहले क्या करना होगा? Unite the masses. और यहाँ पे फोकस किस पे होना चाहिए? Peasant, workers plus students. First we will have to unite the masses. Peasant, worker and students. दूसरी चीज, we need to promote communal harmony at the same time. Communal harmony means Hindus plus Muslims should come together. We need to, okay, promote communal harmony. ठीक है, ये भी जरूरी है. गांधी का कंस्ट्रक्टिव वर्क्स प्रोग्राम का हिस्सा क्या था? Communal harmony. Plus he is also saying that we need to, write this, we need to work together. We need to work together as a team. As a team. And if possible, there is the time to support Indian National Congress. Indian National Congress को support करने की जरूरत है, right? And in this way, we can overthrow British rule from India. In this way, we can overthrow British rule from India. In this way, we can overthrow British rule from India. कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है, बताओ किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया से ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर सकते हैं. दिस इज हिज पर्सनल आइडिया. दिस शोज व्हाट, दैट गांधी वाज रेलेवेंट व्हेन ही टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस. अंग्रेजों को यही तो दिक्कत थी गांधी से कि हम सप्रेस करें तो कैसे करें, अरेस्ट कैसे करें, फांसी पे कैसे चढ़ा दें. अब मान लो तुम नॉन वायलेंट हो, सत्याग्रही हो, तुमको अरेस्ट भी कर लेंगे तो फांसी पे चढ़ा पाएंगे क्या? बताओ. तुम जेल से फिर बाहर आ जाओगे, फिर बाहर आके फिर से अपना मूवमेंट करोगे. मेरी बात समझ गए? जैसे ट्राइबल्स की कहानी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल्स, याद है ना, कि दे बिलीव दैट ठाकुर जी हैज ब्लेस्ड आवर लीडर विद सच पावर्स, ओके, सुपर मैजिकल पावर्स दैट ही कैन मेक अस अलाइव अगेन. वो दोबारा से हमें जिंदा कर सकता है. उसके बाद अंग्रेजों की गोली के सामने खड़े हो जाते थे, चलाओ, ठीक है, चलाओ, तुम मरेंगे नहीं. तो इससे नुकसान किसका हुआ? आपका ही हुआ ना. ठीक है, तो ये तो बड़ा मतलब शानदार आइडिया. बट इसके बाद देखो चेंजेस क्या होते हैं. नाउ चंद्रशेखर आजाद इज आउट. चंद्रशेखर आजाद बाहर है ना. एंड व्हाट वी सी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इज आउट एंड व्हाट वी सी कि, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन HSRA. अब आपको एचआरए के बारे में एक जनरल आइडिया है. अगर जीएस मेंस में क्वेश्चन आए तो लिख पाओगे एचआरए के बारे में 150 वर्ड्स, यू कैन राइट इजीली. ठीक है ना. नाउ राइट दिस HSRA. अब देखो व्हाट इज चेंज हियर. द फर्स्ट वर्ड इज HRA and this is what? HSRA. So what is the new addition? S. पहली चीज, HRA was banned. This political organization was banned. तो आप उसके बैनर के से तो कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते. So what happens here, right? Okay, HSRA was formed. Year is 1928. HSRA was formed. Year was 1928. 1928 में बन गया HSRA. HSRA का पूरा नाम लिखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी. आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन. You can write association also or army also. We can use two words here, Hindustan Socialist Republican Association or army. ठीक है, यानी this is what? This is reorganization of HRA. HRA बैन है,
तो HRA को रीऑर्गेनाइज किया, change its name, and when name was changed, S was included. It means that this organization will work on socialistic lines. समाजवादी विचारधारा को आगे रख के काम करेगा. This is the point here. So you can write here that HSRA is reorganization of HRA. It is what? ये क्या है? Reorganization of HRA with a new commitment. With a new commitment. This is the reorganization of HRA with the new commitment. And what is the commitment? That now the revolutionary movement will be operated. Now the revolutionary movement will be operated along socialistic lines. Now the revolutionary movement will be operated along socialistic lines. ठीक है ना? Revolutionary movement will be okay, carried forward along the socialistic lines, right? So write important names. Founders में what are the important names here? Important names, ठीक है. और इसकी स्थापना कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली. ठीक है ना, फिरोज शाह कोटला. और अभी देखो, what I am teaching here is exactly what you are going to write in your exam. This is completely in sync with the UPSC exam needs. But when I will make separate videos on Bhagat Singh, ठीक है, वो जो 3 hours videos बनाऊंगा, उसमें उनका चाइल्डहुड, उनका घर, है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान जहाँ पे HSRA बना था, ठीक है, या फिर उनके जो एस्से का वो है, या फिर उन्होंने जो लेटर्स लिखे, आई विल डिस्प्ले एवरीथिंग. सो दैट विल बी फॉर योर जनरल अवेयरनेस. ठीक है. और वहां पे जब उसको पढ़ोगे और ये कॉन्सेप्ट रिलेट करोगे तो फिर क्या होगा? यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द भगत सिंह. दोनों चीजें कंबाइन होंगी. तो यहाँ पे हम उसको केवल और केवल एग्जाम पर्पज से लेके चल रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्प्लेइंग द इमेजेस. इंपॉर्टेंट नेम में एक तो नाम चंद्रशेखर आजाद का हो जाएगा. काकोरी कॉन्स्पिरेसी में ही वाज नेम्ड ना. द सेकंड इंपॉर्टेंट नेम इज भगत सिंह. There were so many revolutionaries. I am writing some important names only. Bhagat Singh. The third important name is Sukhdev. Sukhdev. ठीक है, Sukhdev. Next name is Bhagwati Charan Vohra. Bhagwati Charan Vohra. अब आप समझ पाए कि these names are important. ये सब क्या है? Revolutionaries हैं. और revolutionaries की पहले एक बुक बताया था. What was the name of that book? बंदी जीवन. It was written by Sachindra Nath सान्याल. यहां पे भी एक बुक है. द नेम ऑफ दैट बुक इज फिलोसफी ऑफ बॉम्ब. दिस इज वेरी फेमस बुक, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब. अब को ये क्या है भाई? हमने गांधीयन फिलोसफी सुनी, कंटियन फिलोसफी सुनी, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के पीछे एक फिलोसफी है. इसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी मत कहो. ठीक है. और बेसिकली इस बुक के 3 राइटर्स थे. देयर वर 3 नेम्स. राइट दिस. इस बुक को 3 लोगों ने मिलकर लिखा था. ठीक है. जैसे आप लोगों में से कोई अगर IAS टॉप कर जाएगा और हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो बुक मैं लिखूंगा और आपका भी नाम उसमें जोड़ दूंगा. ठीक है. तो इससे बुक ज्यादा बिकेगी. ठीक है ना. ओके. लोग ऐसा करते हैं. ठीक है. आपको पैसे भी मिल जाएंगे. आई एम जस्ट मेकिंग जोक. ओके. ये मार्केट का, बिजनेस का फॉर्मूला है. ठीक है. और सेलेक्ट होने के बाद बच्चा कहता है कितना मजा आया, मेरा नाम भी हो रहा है. मैंने बुक भी नहीं लिखी. ठीक है. चलिए, देखो कितने फायदे हैं सिलेक्शन के. ठीक है. हालांकि ये सब फायदों पे ध्यान नहीं फोकस करना है आपको, पढ़ने पे फोकस करना है. राइट. नेम्स राइट दिस. चंद्रशेखर आजाद. एक इसमें है चंद्रशेखर आजाद प्लस द सेकेंड नेम इज यशपाल. 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 चंद्रशेखर आजाद, यशपाल. एंड द थर्ड नेम इज भगवती चरण वोहरा. भगवती चरण वोहरा. द थर्ड नेम इज भगवती चरण वोहरा. ये नाम यहाँ लिखा हुआ है, भगवती चरण वोहरा. अच्छा देखो, क्या है फिलॉसफी का बॉम्ब? मतलब इसमें ये है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का भी एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है, क्लियर किया गया. और रिवॉल्यूशनरी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज? दैट दिस इज नॉट ए स्पोरेडिक टेररिस्ट एक्ट. ये कोई हिंसक छिटपुट आतंकवादी घटनाएं नहीं है. दिस इज नॉट ए स्पोरेडिक टेररिस्ट एक्ट, बट we aim to establish a new political order.
We aim to establish a new social order. We aim to establish a new economic order in the society. And the society which we dream will be the society which will be free from all forms of exploitation. Exploitation will be near to impossible in that society. यानी हम जिस सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं वहां पे एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, नियर टू इम्पॉसिबल. क्या इसमें अनटचेबिलिटी को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ये सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट हियर दैट, राइट दिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, राइट दिस, नहीं नहीं ऐसे लिखो, राइट लाइक दिस, राइट, revolutionary activities in India were not merely were not revolutionary activities in India were not sporadic terrorist acts, were not sporadic terrorist acts. भाई टेररिज्म में क्या होता है बताओ? वो देखते क्या कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है. एक साथ पता चला 500 लोगों को किल कर दिया, मेनी वुमेन मेनी चिल्ड्रन. बट यहां पे ऐसा कुछ है क्या? कहीं नहीं दिखा ना. तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे कह सकते हो? और भगत सिंह को आप टेररिस्ट कैसे लिख सकते हो? इवन सम बुक्स, सम स्टैंडर्ड बुक्स राइट, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह. ये तो गलत है ना भाई. हाउ कैन यू राइट टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह? ओके, जबकि वो बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं कि दीज आर नॉट स्पोरेडिक टेररिस्ट एक्ट्स, राइट दिस. ओके, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया had a clear vision. Revolutionary activities in India had a clear vision. Revolutionary activities in India had a clear vision, and this vision is to had a clear vision, and this vision is to establish. This vision is to establish a new political order, comma, social order, and economic order. To establish a new political order, new social order, and new economic order. The aim is to establish new political order, new social order, new economic order where exploitation will be an impossible thing, or where exploitation will not be allowed at any cost. Any form of exploitation is not allowed. Any form of exploitation is not allowed. Where any form of exploitation was not allowed. अच्छा बताओ, सोशलिज्म जब आया 1917 में रशिया में, तो क्या कहा सोशलिज्म ने? ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ओके, आर रिजेक्टेड. हम किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कॉलोनियलिज्म हो, इंपीरियलिज्म हो, रेसिज्म हो. इसकी बात करी ना, वही बात ये लोग भी कह रहे हैं ना. इसका मतलब व्हाट HSRA is saying? HSRA is saying that socialism is our official गोल. समाजवाद के उद्देश्यों को लेके आगे चलना क्या है? हमारा ऑफिशियल गोल है. अच्छा बताओ, थोड़ी देर के लिए सोचना, 1928 इज द ईयर. वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है. इंटरनेशनल लेवल पर बिटवीन द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, बिटवीन द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, वेयर देयर एनी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. कौन कौन सी आइडियोलॉजीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फासिज्म और कैपिटलिज्म. याद आया आपको? ठीक है. अब आप ये बताओ कि कैपिटलिस्टिक आइडिया जो है वो एंटी सोशलिस्टिक है. इंडिया में नेशनल मूवमेंट में एक ऐसा ग्रुप अब इमर्ज हो रहा है जो सोशलिस्टिक आइडिया की बात कर रहा है. अंग्रेज टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं बताओ? चलो, इंडिया को आजाद करना पड़ा ये मुद्दा अलग है, लेकिन आजाद करने के बाद इंडिया अगर सोशलिज्म के प्रभाव में आ जाएगा तो ये तो मुश्किल हो जाएगी. तो पहली कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या हो कि आंदोलन के उस धड़े को सप्रेस कर देना, टू सप्रेस दैट पार्ट ऑफ द मूवमेंट विच इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म. मेरी बात समझ गया ना? तो सोशलिज्म की तरफ जो इंक्लाइनेशन हो रहा है उसको खत्म करो. और 1928 से 1931 के बीच का जो टाइम है, इसमें पूरा का पूरा मूवमेंट इंक्लाइन कहाँ हो गया है? सोशलिज्म की तरफ.
और जब भगत सिंह को आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो एक खतरा तो टल जाएगा कि इंडिया में सोशलिज्म आ सकता है। बाकी कांग्रेस से डील करते रहो, कांग्रेस को बातों में उलझाए रखो। कुछ समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, that what is the ideological development between the period of two world wars at the international level, that thing will also have an effect here. अच्छा, write this that socialism now was the official goal. अब यहाँ पे socialism क्या हो गया, socialism ये हो गया, this becomes the official goal, this becomes the official goal, ये तो official goal हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ, सोशलिज्म अगर ऑफिशियल गोल हो गया तो क्या सोशलिज्म रिवॉल्यूशन की बात करता है, यस और नो? टॉक्स अबाउट रिवॉल्यूशन, यस। अच्छा, इन रिवॉल्यूशन यूज ऑफ वायलेंस इज वैलिडेटेड और नॉट? सोशलिज्म कम्युनिज्म पढ़ा है, तो यहाँ पे उस आइडियोलॉजी में देखोगे तो यूज ऑफ वायलेंस इज ऑल्सो वैलिडेटेड, इसको भी वैलिडेट करेंगे। अगर ऐसा है तो will this HSRA advocate for a mass based HSRA, will it advocate for a mass based armed struggle, mass based armed struggle, mass based armed struggle? ठीक है, mass based armed struggle, ये तो बात करेगा ही। बहुत टेक्निकल चीजें हैं और बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। इट विल टॉक अबाउट मास बेस्ड आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्ड स्ट्रगल आ गया तो वायलेंस आ गया, प्लस आपने क्या कर दिया, मास बेस्ड। मास बेस्ड पॉलिटिक्स जैसे ही आएगी, व्हेन द पॉलिटिक्स विल बी मास बेस्ड पॉलिटिक्स, तो विल यू मेक एफर्ट टू गेट सपोर्ट ऑफ पीजेंट, वर्कर्स, स्टूडेंट्स? क्या इन सब का सपोर्ट लोगे आप, लोगे? और उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सपोर्टर आपके सपोर्टर बन जाएंगे, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। ठीक है, मुस्लिम लीग, ये भाई एक बात बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। If peasant workers youth will incline towards socialistic ideas, will भगत सिंह, तो वो किधर की तरफ जाएंगे, किस पार्टी की तरफ? ये पार्टी ही तो है HSRA, किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव होगा, HSRA की तरफ। तो if this idea will become popular, तो which organization will become popular? HSRA, and this popularity is अच्छा है, but is it a challenge for a political party like Indian National Congress, yes or no? ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स पे देखना, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ, बट यस, पॉलिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये चैलेंज तो है ही। ठीक है, नाउ दिस इज द आइडिया दैट हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। ठीक है ना, और इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट द लीडर्स ऑफ दिस HSRA हैव अ पॉलिटिकल थिंकिंग आल्सो, इनकी एक पॉलिटिकल थिंकिंग भी है, दे हैव अ पॉलिटिकल थिंकिंग, देयर इज अ क्लियर विजन। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, गॉट इट? और जैसे एक वर्ड आप लिखो, दैट विल बी अ बेटर आइडिया, आप समझ पाओगे। रेड दिस, ओके, टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल सिस्टम एज फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस तरह का ये अप्रोच ले रहे हैं। फेडरल रिपब्लिक, दे आर सेइंग दैट वी विल सेट अप दिस पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, United States of India, Federal Republic of United States of India. They are saying that this will be the new government in Hindustan. They are saying that this will be the new government in Hindustan. Federal Republic of United States of India. और यहाँ क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज विल बी गिवन। अच्छा, दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। था क्या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, याद है? कैबिनेट मिशन 1946, इलेक्शंस हुए थे, इन इलेक्शंस क्या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का फॉर्मूला यूज किया गया था? नो। ठीक है, वो क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी प्लस कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स 1946 में। तो HSRA क्या कह रही है, कह रही है भाई हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लेके आएंगे, we will abolish all the systems which make exploitation of a man by man possible। ठीक है, we will support and develop peasant organizations, labor organizations। ठीक है, they are advocating the rights given to the peasant and workers
ऑर्गेनाइजेशन, वो राइट्स देने की बात कर रहा है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो राइट दिस हियर that they advocated for the rights like universal adult suffrage. They advocated for the rights like universal adult suffrage. ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. ठीक है, राइट. अपोजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये किया. अपोजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, opposing all kind of exploitation. Right, next point. Okay, making and development and consolidation of peasant and workers organization, इस पे भी फोकस होगा. development and consolidation of development and consolidation of peasant plus worker plus student organization. development and consolidation of peasant worker and student organization. ठीक है, डेवलपमेंट. ठीक है, एंड कंसोलिडेशन ऑफ पीजेंट वर्कर एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मान लो कि इफ यू आर इन महाराष्ट्र और विपिन इज इन हरियाणा, पूजा इज इन राजस्थान या शताक्षी, ठीक है, तो आपके यहाँ सपोज देयर इज, ओके, आपने रीजनल पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस. तो बताओ कि आपने अपने प्रोविंस में पीजेंट्स को एक बैनर के नीचे यूनाइट किया कि नहीं? और जब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मीटिंग करेंगे तो क्या ऑल इंडिया लेवल पे पीजेंट्स को यूनाइट किया जा सकता है? हाँ, यही तो तरीका है. ऐसे ही आपने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर स्टेट लेवल पे बनाया, फिर सारे स्टेट के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया. जैसे आज पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, स्टूडेंट यूनियन. ठीक है, आपको पता ही होगा, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का है, सारी पार्टीज ने बना रखा है. यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़े स्टूडेंट सपोर्ट. तो आइडिया तो आज भी चल रहा है ना, क्योंकि स्टूडेंट सपोर्ट अगर आपको मिल गया तो फिर आपका पॉलिटिकल पावर. और भगत सिंह हु इज द लीडर इन दिस पेज, इस पूरे के पूरे पेज में लीड कौन कर रहा है? भगत सिंह. और भगत सिंह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि भाई रिवॉल्यूशन करना है तो बस बैठ के सोच रहा है किसको किधर निपटाना है, ऐसा नहीं. ही वॉज अ voracious reader. He read a lot of literature on socialism. सोवियत यूनियन के बारे में पूरी की पूरी किताबें पढ़ डाली उन्होंने, रिवॉल्यूशन के बारे में पूरी की पूरी किताबें पढ़ डाली. ठीक है, पीजेंट राइट्स क्या हो सकते हैं, वर्कर्स राइट क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ा होगा. एंड देन भगत सिंह सेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन एंड दिस रिवॉल्यूशन इज बाय द मासेस एंड फॉर द मासेस. इसका मतलब भगत सिंह के लिए व्हाट इज रिवॉल्यूशन? Is it only a military violence or a kind of violence? No. What is the objective of the revolution? The objective of the revolution is to ensure liberation of India. ठीक है, भारत को आजाद करना, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवॉल्यूशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवॉल्यूशन इज टू बिल्ड अ सोशलिस्टिक सोसाइटी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवॉल्यूशन इज टू एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ओके, कि एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, ये हम लेके आए. एंड भगत सिंह सेड that communalism was as big danger as colonialism. इस देश के लिए उपनिवेशवाद जितना बड़ा खतरा है, उससे कम बड़ा खतरा संप्रदायवाद नहीं है. कम्युनलिज्म इज एज बिग डेंजर एज कॉलोनियलिज्म. मेरी बात समझ गए? अब बताओ, ऐसे आदमी से तो सारी पार्टियां डरेंगी. हिंदू कम्युनल पार्टियां भी डरेंगी, मुस्लिम कम्युनल पार्टियां भी डरेंगी. कांग्रेस को लग रहा है यार ये तो गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, और कह रहा है कि रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा, हम नई सरकार बनाएंगे, नई इकोनॉमी लेके आएंगे. अब बताओ कौन कौन नाराज हुआ भगत सिंह से? लॉजिकली सोचो, क्या नेशनल लेवल पे लोग भगत सिंह से नाराज हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भगत सिंह से नाराज हैं? ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, भगत सिंह की फांसी को माफ करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे? नहीं. भगत सिंह को जिंदा रखने का मतलब था कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल सकता था. ठीक है, क्योंकि सेकेंड फेज के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के पीछे एक आइडियोलॉजी काम कर रही है. फर्स्ट फेज की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उतनी चैलेंजिंग नहीं थी जितनी की सेकेंड फेज की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या है ऑल दिस? ठीक है, नाउ ठीक है, राइट दिस. इसमें ये भी था भगत सिंह का कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज कर देंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और ये सारा आइडिया था. अब बताओ, नेशनलाइजेशन की बात करोगे आप, ठीक है, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में है उनकी हालत क्या होगी?
और अंग्रेजों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया था इंडिया में आपको पता है? देयर वाज अ फियर दैट, याद है जब मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें फेजेस बताए थे। 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कि कैसे ब्रिटेन में कम्युनिस्ट आइडियाज वर गेटिंग पॉपुलर, देन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेफ डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट वाज इंडिया, तो इंडिया में लाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इंडिया में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और अभी भगत सिंह कह रहे हैं कि इंडिया में क्या आ जाएगा, सोशलिज्म। तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट खतरे में आ गया। तो सबसे बड़ा विलन कौन है कैपिटलिस्ट के लिए भी? भगत सिंह, क्योंकि नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एग्जीक्यूशन के पीछे, भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है? गवर्नमेंट क्यों एग्जीक्यूट कर रही है भगत सिंह? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन राइट दिस, आप लिख सकते हो इसको। ऑब्जेक्टिव लिख लिया। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन की बात करेगा, ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन की बात करेगा, मास बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है, पीजेंट वर्कर्स और यूथ के कंसोलिडेशन पे फोकस होगा, यूनिवर्सल लिबरल सफरेज की बात की जाएगी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करने की बात की जाएगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द एसेट्स, इसकी भी बात की जाएगी, नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एसेट्स। ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ idea of socialism, comma, developments in the Soviet Union, impact of idea of socialism, impact of idea of socialism, comma, developments in Soviet Union, developments in Soviet Union, and other revolutionary other revolutionary events of the world on the minds of Bhagat Singh, and other revolutionary events of the world on the minds of Bhagat Singh, ठीक है, other revolutionary events of the world on the minds of Bhagat Singh, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, according to Bhagat Singh, revolution could only be achieved, according to Bhagat Singh, revolution could only be achieved by the masses and for the masses. According to Bhagat Singh, revolution could only be achieved by the masses and for the masses. Revolution could only be achieved by the masses and for the masses, ठीक है, by the masses and for the masses, ठीक है। Now we are discussing meaning and scope of revolution, ठीक है, according to Bhagat Singh, according to Bhagat Singh, ठीक है। In GS mains you can get this question, so you must know a few points, that what is the meaning and scope of revolution according to Bhagat Singh. So draw this structure and write 4 to 5 points, ठीक है, meaning and scope of revolution according to Bhagat Singh. Okay, so write this, revolution, revolution, right, is not a sporadic act of terrorism. Revolution is not any sporadic act of terrorism. Revolution is not any sporadic act of terrorism. It's not only a military violence. It's not only a military violence. Okay, its scope is wider than that. Scope is wider than that. Scope wider than that. Scope wider than that. इसका scope क्या है? Am I audible, Vipin? Scope is wider than that. Right. So what is the scope and objective? According to Bhagat Singh, what is the scope and objective? Bhagat Singh के according scope and objective क्या है? Right? National liberation. National liberation. This is the scope and objective. National liberation. ये क्या है? This is the scope and objective. National liberation is the scope and objective. The third point, और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पहला ऑब्जेक्टिव है, राइट, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, टू बिल्ड अ न्यू सोशलिस्टिक सोसाइटी. द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड
a new socialistic society. To build a new socialistic society. ठीक है. Next objective is right to develop a new political order. To develop a new political order. New political order. To develop a new economic order. To develop a new social order. To develop a new political order. New economic order. New social order. ठीक है. अच्छा, इस सोशल ऑर्डर में कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह है क्या? Is there any space for communalism? No. So you can write here that in the new social order, there will be no space for communalism. There will be no space for communalism. ठीक है? In this new social order, there will be no any space for communalism. इस नए सोशल ऑर्डर में कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं होगी. There will be no any space for communalism. ठीक है? और एक स्टेटमेंट लिखो भगत सिंह का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? communalism was as big danger as colonialism. Communalism was as big danger as colonialism. Communalism was as big danger as colonialism. फिर पार्टियों की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? कॉम्युनलिज्म एंड एज बिग डेंजर एज कॉलोनियलिज्म. और दूसरी बात भगत सिंह क्या कहते हैं? ठीक है, भगत सिंह idea about the untouchability, custom of untouchability that is practiced in India. Bhagat Singh says that, okay, कि भाई आप छुआछूत क्यों मानते? आप किसी शूद्र को टेंपल में नहीं जाने देते, शूद्र को घर में नहीं आने देते, शूद्र को अलग बर्तन में चाय देते हो, शूद्र को अपने किचन में एंट्री नहीं करने देते. कहा अगर शूद्र को एंट्री देने से अगर आपका ईश्वर नाराज हो जाता है तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं. फिर वो ईश्वर कहाँ है? जो ईश्वर छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाए वो ईश्वर है? बताओ. हम तो कहते हैं कि ईश्वर एकदम शांत है, बिल्कुल नाराज नहीं हो सकता. तो अगर आपका ईश्वर इन छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जा रहा है कि हाउ शूद्रा एंटर्ड द टेंपल, हाउ शूद्रा यूज द पब्लिक वेल्स, है ना, and you are not doing interdining with the shudras and you are worshipping a god, so if your god like these kind of things, so I don't believe in such kind of god. ऐसे ईश्वर में मुझे भरोसा नहीं है. अच्छा, कहां से गलत लॉजिक है बताओ? तो जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी भगत सिंह खतरा, जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी भगत सिंह खतरा. और लास्टली भगत सिंह क्या कहते हैं? आई बिलीव इन द एबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड द सिस्टम ऑफ क्लास डोमिनेशन. इसका मतलब भगत सिंह इज डेंजर फॉर द कैपिटलिस्ट आल्सो. भगत सिंह इज डेंजर फॉर द कैपिटलिस्ट कंट्रीज आल्सो. ओके, सो दिस इज द आइडिया. तो यू कैन राइट हियर दैट, ओके, भगत सिंह सोशल ऑर्डर में एक और पॉइंट लिख सकते हो, राइट? भगत सिंह did not believe in the system of caste rigidities and practice of untouchability. Bhagat Singh did not believe in the system of caste rigidities and the practice of untouchability. ठीक है? तो भगत सिंह की टी शर्ट पहन के हिंदू मुस्लिम करते हो, भगत सिंह की टी शर्ट पहन के, ठीक है, ब्राह्मण और दलित करते हो, तो तुम भगत सिंह के आइडिया को थोड़ी ना मानते हो यार. ठीक है, तो भगत सिंह की टी शर्ट उतार दो. ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? सो ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कास्ट रिजिडिटीज एंड द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. और भगत सिंह क्या सोचते हैं? व्हाट भगत सिंह थिंक्स, राइट? ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ एबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म. ये सबसे खतरनाक है. ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ एबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म. कहते कैपिटलिज्म को अबॉलिश करना, abolition of capitalism, right? Next point. Okay, he believes in the idea of abolition of class domination. He believes in the idea of abolition of class domination. It means class conflict को क्या करना है? abolish करना है. ठीक है, राइट? नहीं, सॉरी, है ना? यानी कि जो कास्ट क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना है. गॉट इट? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज द अल्टीमेट रियलिटी. तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, खत्म करेंगे. सो ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ अबॉलिशन ऑफ क्लास डोमिनेशन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. भगत सिंह फुल्ली एक्सेप्टेड, भगत सिंह फुल्ली एक्सेप्टेड, आई एम यूजिंग अ वर्ड हियर, मार्क्सिज्म. भगत सिंह फुल्ली एक्सेप्टेड मार्क्सिज्म.
and the idea of class approach to society. Bhagat Singh fully accepted Marxism and the idea of class approach to society. Fully accepted Marxism and the idea of class approach to society. ठीक है? भगत सिंह क्या कहते हैं कि a person must be free from the mental bondage of religion, of superstitions. We all are in that mental bondage. हम सब उस मानसिक बंधन की दशा में, ठीक है? We believe in superstitions. We are under the dominance and influence of religion. का पहले इससे बाहर निकलो. And a society can progress only when the individuals will learn to criticize, to disbelieve, and to challenge the item of faith. जैसे भगत सिंह ने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो छुआछूत को बढ़ावा देता. उन्होंने क्या किया? ओल्ड फेथ को क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज किया. अच्छा, अगर ऐसा आइडिया है और ऐसी सोसाइटी में अगर ऐसी चीजें मानने वाले यूथ है तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली द सोसाइटी विल मेक प्रोग्रेस. जैसे एक आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपने एक लाइन सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस लाइन, है ना, कि ज्यादा पढ़ा लिखा देने से लड़कियां हाथ से निकल जाती. सुना होगा. बहुत लोग कहते हैं हाँ यार थोड़ा संभाल के, बाहर पढ़ने वढ़ने नहीं भेजना है, घर में रह गए तुम ऑनलाइन क्लास कर लो, बाहर नहीं जाना. तो पीपल बिलीव ज्यादा पढ़ा लिखा देने से घर की लड़कियां हाथ से निकल जाती है. बट व्हेन यू बिलीव कि अगर ये सच है कि ज्यादा पढ़ा लिखा देने से लड़कियां हाथ से निकल जाती है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाए, मैं चाहूंगा मेरी बहन मेरे हाथ से निकल जाए. When you will start thinking like that, you are challenging the beliefs of old faith. मेरी बात समझ गया ना? आपने सीधा सीधा क्या किया? हमला बोल दिया. तो आप पसंद आओगे क्या? गांव में बोल के देखो कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसका विवाह नहीं होने देना है, इसका विवाह काटने में जब भी इसका मैरिज प्रपोजल कहीं से आए तो इसका कट करो, ठीक है? ओके. तो भगत सिंह वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है ना? सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू कैन राइट हियर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस्से में भी आप यूज कर सकते हो. राइट दिस. अकॉर्डिंग टू भगत सिंह, according to bhagat singh according to bhagat singh, a person must be free from mental bondage of religion and superstition. A person must be free from the mental bondage of religion and superstition. A person must be free from the mental bondage of religion and superstition. Okay, right, next statement. Read this. That society will make progress. That society will make progress the young where the young people learns to. That society will make progress where the young people learns to. That society will make progress where the young people will learn to criticize, disbelieve, where the young people will learn to criticize, disbelieve, and challenge every item of old faith. Challenge every item of old faith. ठीक है? Every item of old faith. Disbelieve. ठीक है? Challenge every item of old faith. एक और बात याद रखना, भगत सिंह जो है, ठीक है, an important fact, ठीक है, he first found an organization that is नौजवान भारत सभा in 1926, और उसके बाद जो HSRA है इसके साथ ये जुड़ते हैं 1928 में. तो दिस फैक्ट यू कैन राइट, एक बॉक्स में लिख सकते हो, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा 1926. HSRA कब है? HSRA is in the year 1928. HSRA 1928 में, ठीक है ना? भगत सिंह was a student leader also, ठीक है, we all know this. भगत सिंह was a student leader also. और एक और declaration भगत सिंह का बता रहा हूँ, that is very much important and we should know this. Read this. Bhagat Singh himself declared on 22nd Feb 1931. Date is not important, but I am writing a date for a reason. Bhagat Singh himself write on 2nd Feb 1931. फांसी कब है भगत सिंह को बताओ? 23rd March 1931. It means almost 1 month before.
फांसी के 1 महीने पहले भगत सिंह क्या लिखते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द स्टेटमेंट 1 मंथ बिफोर, ठीक है, नियरली 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा है, ठीक है, बट 1.5 मंथ्स लिख सकते हो, 1.5 मंथ्स बिफोर द एग्जीक्यूशन क्या लिखते हैं, राइट द स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट दिस, apparently I have acted like a terrorist, 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 but I am not a terrorist, but I am not a terrorist, and I was never a terrorist. I am not a terrorist and I was never a terrorist. ठीक है, I was never a terrorist. Apparently I have acted like a terrorist, but I am not a terrorist and I was never a terrorist. And write in bracket में लिखो except perhaps in the beginning of my revolutionary career, except perhaps in the beginning of my revolutionary career, except perhaps in the beginning of my revolutionary career. इस बात में बहुत दम है, दिस स्टेटमेंट, ये तो आपको याद करना चाहिए कि अपेरेंटली आई हैव एक्टेड लाइक अ टेररिस्ट, यानी कि जब आप भगत सिंह को देखते हो या भगत सिंह के बारे में पढ़ते हो तो एक दफा आपको ऐसा लगेगा कि भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट, बट ही इज सेइंग दैट आई वाज नॉट अ टेररिस्ट, आई वाज नेवर अ टेररिस्ट। आपको ऐसा क्यों लग सकता है, परहैप्स, ठीक है, कब लग सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, जो मेरी कुछ एक्टिविटीज हैं उनको देख के आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं टेररिस्ट नहीं था। अच्छा, दूसरी बात है, द एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरियंस रोट भगत सिंह एज अ टेररिस्ट, द टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह अभी भी हिस्ट्री की बुक में लिखते हैं। बताओ कितना बड़ा इनजस्टिस है ये, कि द सेम पर्सन इज मेकिंग क्लैरिफिकेशन कि आई वाज नॉट अ टेररिस्ट, आई वाज नेवर अ टेररिस्ट, एंड व्हाट यू आर राइटिंग, सब हेडिंग है बुक में, टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह। क्या ये गलत नहीं है? तो इन एग्जाम व्हेन यू विल राइट दिस वर्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ भगत सिंह, ठीक है ना, ये बात थोड़ा बताना था आपको, ये चीजें आप समझ गए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट विथ यू दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जाम, और वो इवेंट क्या है, राइट दिस, एन इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड दैट इवेंट इज द इवेंट डेटेड ऑन 8th April 1929, 8th April 1929 तब की ये इवेंट है, 8th April 1929, ठीक है। इन दिस इवेंट टू रिवॉल्यूशनरीज वेर इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे देयर वेर टू रिवॉल्यूशनरीज दैट वेर इन्वॉल्व्ड, दो रिवॉल्यूशनरी इन्वॉल्व थे। द नेम ऑफ वन रिवॉल्यूशनरी इज भगत सिंह, एंड द नेम ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशनरी हियर इज बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, दिस इज द सेकेंड रिवॉल्यूशनरी, बटुकेश्वर दत्त। सो देयर आर टू रिवॉल्यूशनरीज इन्वॉल्वड हियर, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। एंड व्हाट इज द इवेंट, वो इवेंट क्या है, तो इवेंट क्या है, राइट दिस, दे थ्रू बॉम्ब, दे थ्रू बॉम्ब, दे थ्रू बॉम्ब in the Central Legislative Assembly on empty benches, in the Central Legislative Assembly, आज जिसको पार्लियामेंट कहते हो, मतलब पार्लियामेंट में कोई बॉम्ब फोड़ दे तो ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी ना। सो दे थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये बॉम्ब कहाँ फेंका, ऑन एम्प्टी बेंचेस, ऑन एम्प्टी बेंचेस, एम्प्टी बेंचेस पे फेंका, एम्प्टी बेंचेस पे फेंका। क्यों फेंका, ये बात आपको समझनी है, क्यों फेंका, ठीक है, इसके पीछे का रीजन समझो। देखो 1929 इज द ईयर, और 1923 स्वराजिस्ट पार्टी पॉलिटिक्स, पता है ना आपको, काउंसिल एंट्री, इंडियंस मेड काउंसिल एंट्री, इंडियन घुस गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गांधी बाबा ने समझाया था काउंसिल में जाने वाने का कोई मतलब नहीं। वीटो पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है,
अगर आप लोग सब लोग मिल के भी किसी चीज को अपोज करोगे तो गवर्नर जनरल अगर चाहेगा तो अप्रूव कर देगा, चाहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आप सबसे ओपिनियन लूं, है ना, कि कल सुबह 8 बजे की क्लास लेनी थी, जैसे रात को मैंने आप सबसे ओपिनियन पूछा, आपने कहा हाँ हाँ हम क्लास ले सकते हैं सुबह में 8 बजे, और पता चले अगर आप कहते, सब लोग कहते नहीं नहीं हम क्लास नहीं ले पाएंगे सुबह 8 बजे, मैं कहता तो मैं तो पढ़ाऊंगा सुबह 8 बजे। तो गवर्नर जनरल यही काम करता था, ठीक है, आपकी ओपिनियन पूछता था, फिर वो करता वही था जो उसको करना था, ठीक है। इसीलिए गांधी बाबा ने कहा था कि ये पॉलिटिक्स बहुत सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 बिल्स, 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए। द नेम ऑफ वन बिल वॉज पब्लिक सेफ्टी बिल। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू कर्टेल सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस। मतलब बिल का नाम क्या है, पब्लिक सेफ्टी बिल। अंग्रेज धोखा बहुत देते थे, उन्होंने 1909 के एक्ट को क्या कहा, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। 1919 के बारे में क्या कहा, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेश सेट ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। तो बेवकूफ तो बनाते ही थे वो। सो दे इंट्रोड्यूस पब्लिक सेफ्टी बिल, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पब्लिक सेफ्टी बिल वाज टू कर्टेल द लिबर्टीज ऑफ इंडियंस, भारतीयों की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश करना। दूसरा, एट द सेम टाइम दे इंट्रोड्यूस अनदर बिल दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के माध्यम से दे वर ट्राइंग टू कर्टेल द राइट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के अधिकार को कम करना, क्योंकि वर्कर्स अब ऑर्गेनाइज हो रहे थे, अपने राइट्स की मांग कर रहे थे। अच्छा, 1929 के आसपास वर्कर्स क्यों ऑर्गेनाइज हो रहे थे, अपने राइट्स की क्यों मांग कर रहे थे, क्योंकि ये सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में कौन सा आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है, सोशलिज्म। एंड दे आर प्रोमोटिंग वर्कर्स, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स टू गेट यूनाइटेड, कि उनको यूनाइट होना चाहिए। वर्कर्स को लगा यार यूनाइट होना चाहिए, वो यूनाइट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा यार ये यूनाइट हो जाएंगे तो फिर तो नेशनल मूवमेंट को मजबूत कर देंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दीज 2 बिल्स। इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, अपोज किया इन बिल्स को, कहा हम पास नहीं होने देंगे, खूब हंगामा कर लिए, कुर्सी टेबल तोड़ लिए। लास्ट में गवर्नर जनरल के पास वीटो है, वो पास कर देगा, ठीक है। भगत सिंह ने कहा अच्छा तुम लोग अपना काम कर चुके, काउंसिल एंट्री करके भी इस बिल को पास होने से नहीं रोक पा रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारी नहीं सुन रही है। वो आके रो रहे थे भगत सिंह के सामने कि साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, हमने सदन में इतना हंगामा किया, कुर्सी टेबलें तोड़ डाली, गवर्नमेंट हमारी बात सुन ही नहीं रही है, गवर्नमेंट बहरी हो गई है। भगत सिंह ने कहा ठीक है, बहरे लोगों को सुनाना मुझे आता है। तो टू मेक द डीफ हियर, Bhagat Singh did what? Bhagat Singh threw bombs on the empty benches on legislative assembly to make the deaf hear. Who was the deaf? British authority. British authorities ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ओपिनियन को रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो ऐसी सरकार क्या है, बहरी सरकार है, डीफ है। एंड टू मेक द डीफ हियर, भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कहा यार हमने मॉडरेट तरीका तो अपना लिया ना। अच्छा, जो बॉम्ब फेंका, क्या इस बॉम्ब का उद्देश्य किसी को जान से मारना था क्या, बताओ। तो ये वायलेंस हुआ कि ये लिमिटेड वायलेंस हुआ, लिमिटेड वायलेंस। तो बॉम्ब फेंका तो आप कह रहे टेररिज्म वाला एक्ट है, ये टेररिज्म वाला एक्ट थोड़ी ना। दिस वाज डन फॉर अ कॉज, एंड व्हाट वाज दैट कॉज, टू मेक द डीफ हियर। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों के बात को, इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बात को सिंसियरली नहीं सुन रही थी, और उसका तो अप्रोच बहुत पहले से था, हमारी बात को, किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते थे, ये तो पता ही है ना आपको। सो दिस वाज द एपिसोड, ओके। तो राइट दिस थ्रू बॉम्ब, ओके। एंड व्हाई थ्रू बॉम्ब, राइट, टू मेक द डीफ हियर, to make the deaf hear, to make the deaf hear, to, to make the deaf hear. Now who is the deaf here? So British government, British Indian government is the deaf, colonial government is the deaf, to make the deaf here. And why British colonial government is the deaf? So there is two reasons here. Why it's deaf? ठीक है, so there is two reasons here. One is what, right, public safety bill, पहला है public safety bill, and the second is trade disputes bill. इन दोनों का नाम याद रखना, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस इन डिटेल, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। दिस इशू इज रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तो राइट अबाउट पब्लिक सेफ्टी बिल लिखो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्टेल द सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडियंस। पब्लिक सेफ्टी बिल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्टेल, it was introduced to curtail civil liberties of Indians. It was
इंट्रोड्यूस टू कर्टेल सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस, ये है पब्लिक सेफ्टी बिल। और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल क्या है, रेड दिस, इट वाज इंट्रोड्यूस टू कर्ब द राइट्स ऑफ द वर्कर्स टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल। It was introduced to curb the rights of the workers to organize and struggle. It was introduced to curb the rights of the workers to organize and to struggle. ठीक है? It was introduced to curb the rights of the workers to organize and struggle. To organize and struggle. इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है? Lastly क्या है? Read this, execution of Bhagat Singh. This part I have already discussed with you. Execution of Bhagat Singh in the year 23rd March 1931. ठीक है, यही तो था ना, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 23rd March 1931. ठीक है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। अब एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, अब देखो 1931, यानी कि बिटवीन दिस पीरियड 1928 to 1931, ओके, भगत सिंह पॉपुलैरिटी वाज एट इट्स पीक। ये बात आपको समझना है, भगत सिंह पॉपुलैरिटी was at its peak. Bhagat Singh here was the symbol of socialism, communism, Marxism, जो भी कह लो. So he was the symbol of socialism in India. Bhagat Singh बन चुके थे symbol of socialism. Bhagat Singh was very much popular among the youth, among the peasants, among the workers. And he was also making efforts to organize and consolidate youth, peasant and workers. वो इस आइडिया में बिलीव करते थे कि हमें इन सबको क्या करना होगा, साथ लाना होगा. इट मीन्स मास बेस्ड मूवमेंट में भगत सिंह यकीन करते थे कि नहीं? यस, ठीक है. बट दिस मास बेस्ड मूवमेंट इज अल्टीमेटली फॉर अ रिवॉल्यूशन. इससे क्या किया जाएगा? रिवॉल्यूशन. एंड दिस रिवॉल्यूशन विल बी सक्सेसफुल इन अपरूटिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. अपरूटिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. अच्छा, अंग्रेज जब चले जाएंगे तो इंडिया में एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर आएगा दैट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, इकोनॉमिक ऑर्डर दैट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म, सोशल ऑर्डर दैट इज बेस्ड ऑन सोशलिज्म. भगत सिंह यही कहते थे ना. नाउ हु इज इन थ्रेट ड्यू टू भगत सिंह? तो एट इंटरनेशनल लेवल यू कैन राइट हियर दैट एट इंटरनेशनल लेवल between the period of two world wars, at international level between the period of two world wars, there were ideological conflicts. इंटरनेशनल लेवल में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. देयर वाज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीरियड ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, देयर वाज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीरियड ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स एट द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रेड दिस किन किन आइडियोलॉजीज के बीच में चल रहा था? तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फासिज्म. ये आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? भगत सिंह राइज एंड पॉपुलैरिटी is promoting the ideological conflict between capitalism and socialism in India, and that's why Bhagat Singh was a serious threat for the British government. So write this. Now Bhagat Singh's rise and popularity as a socialist leader in India. Now Bhagat Singh's rise and popularity as a socialist leader in India. Now the Bhagat Singh's rise and popularity as a socialist leader in India was a threat. Bhagat Singh's rise and popularity as a socialist leader in India was like a threat for British government as well as the capitalist ideology at the international level. British government as well as capitalist ideology at the international level. ठीक है, भगत सिंह as well as capitalist ideologies at the international level. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज था उसके लिए भी क्या था? इट वाज लाइक अ थ्रेट. समझ पाए? दूसरा थ्रेट किसको हो जाएगा? राइट, थ्रेट टू द कैपिटलिस्ट्स.
threat to the capitalists. Bhagat Singh's emergence was a threat for the capitalists. Emergence was a threat for the capitalists. Capitalists को भी खतरा है. वो क्या कह रहे हैं? Abolition of capitalism. तो ये relate कर पा रहे हो ना? Nationalization of properties और economic assets. ठीक है? तो capitalists को खतरा है. Right. Third point. Bhagat Singh's emergence was also a threat for the communal parties. Communal parties के लिए भी खतरा है. Right. Bhagat Singh's emergence was also a threat for the communal parties. His emergence was also a threat for the communal parties. ठीक है ना? ये मत लिखना थ्रेट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा. मेरी बात समझ गए ना? तो वो हम नहीं लिख सकते. तो ये बात आप समझ गए. एग्जीक्यूटेड इन 23 मार्च 1931. अच्छा, एग्जीक्यूशन जिन कंडीशंस में होता है वो क्या है आपको पता है? फर्स्ट आरटीसी हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनी हाउ, किसी भी तरह से, इज ट्राइंग टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनसी इन सेकेंड आरटीसी. किसी भी तरह से चाहती कि सेकेंड आरटीसी में आईएनसी का पार्टिसिपेशन हो जाए. एंड दिस इशू वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हूम? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट. कौन गरज में है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट. अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस विल नॉट पार्टिसिपेट इन आरटीसी तो उन डिस्कशंस का कोई मतलब ही नहीं होगा. एंड व्हाट हैपेंस? ओके, INC and Gandhi agrees to participate in second RTC. And here Gandhi concluded a pact with Irwin. This pact was concluded on 5th March 1931 and INC participates in second round table conference. ठीक है? But Bhagat Singh execution, okay, was not repealed. उसको रिपील नहीं किया गया. सबके अपने एक्सप्लेनेशन हो सकते थे, लेकिन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात पे अड़ जाती कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब तक भगत सिंह को फांसी की सजा को रद्द नहीं किया जाता, तो यकीन मानो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मजबूरी था कि यहां फांसी की सजा को क्या करना पड़ता? रद्द करना पड़ता. बाद में कुछ और वो तरीका लगाते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हियर दिस मैटर वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट क्या हुआ? इट वाज नॉट एड्रेस्ड. गांधी रेज दिस इशू कि आप भगत सिंह के फांसी के सजा को वो करो, बट ब्रिटिश अथॉरिटी सेज दैट गांधी बाबा, भगत सिंह पे वायलेंस का चार्ज है और आप हमेशा वायलेंस का विरोध करते हो. सो वी कैन रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑन हुम देयर आर नो चार्जेस ऑफ वायलेंस, बट वी कैन नॉट रिलीज भगत सिंह. भगत सिंह को हम नहीं छोड़ सकते. नाउ व्हाट हैपेंस? 23rd March 1931 भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड. और इसके बाद हम क्या देखते हैं? आईएनसी पार्टिसिपेट्स इन सेकेंड आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. और भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के साथ ही, हालांकि एक और इवेंट है दैट इज इन बंगाल, ठीक है, चिटगोंग आर्बरी रेड, वो भी डिस्कस करूंगा. बट विद दिस व्हाट वी सी दैट द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज विल कम टू एन एंड. अच्छा, पीजेंट और वर्कर तो पहले से कंसोलिडेट हो ही चुके हैं. अब उनको कांग्रेस के बैनर के नीचे लाने की कोशिश होगी. कांग्रेस में सोशलिस्ट लीडर्स होंगे, ठीक है, और दैट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस, दे विल बिकम पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे. दिस इज गोइंग टू हैपन. सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? आप ये समझ गए? ठीक है. अब देखो क्या है, एक सवाल आपने पूछा नहीं जबकि आपको पूछना चाहिए था कि भगत सिंह, क्या कहा ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कि वी विल रिलीज ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑन whom देयर आर, ओके, नो एनी चार्जेस ऑफ वायलेंस. तो वाज भगत सिंह ट्राइड इन दिस केस? क्या इस केस में फांसी हुई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रोइंग बॉम्ब्स इन दिस केस? नो. इस केस में भगत सिंह को फांसी नहीं हुई थी. किस केस में फांसी हुई थी? तो देखो, एंटी साइमन एजिटेशन याद करो, लाठी चार्ज, विच लीडर वाज हर्ट? लाला लाजपत राय वाज हर्ट. और ये बात भी कब की है? 1928 की. और इसका बदला लेने के लिए किसको मारा गया? सॉन्डर्स को मारा गया. और उसके बाद HSRA ने एक पोस्टर रिलीज किया. उस पोस्टर पे लिखा कि बी अवेयर टायरेंट्स, आवर रिवेंज वाज टेकन, सॉन्डर्स वाज किल्ड. ठीक है, इस नोटिस को चिपका दिया हर जगह. ठीक है, बी अवेयर टायरेंट्स, आतताइयों तुम सतर्क हो जाओ,
लाला लाजपत राय किलिंग्स वाज एवेंज्ड, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जा चुका है, सॉन्डर्स वाज किल्ड, ऐसे ये पोस्टर लगाते थे रिवॉल्यूशनरीज। तो इसी मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ट्राई किया गया और लाहौर के जेल में इनको फांसी दे दी गई। केस ये था, मेरी बात समझ गया ना, क्योंकि इसमें तो डिफेंड किया गया इनको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली throwing bombs on the empty benches of central legislative assembly, ठीक है ना। तो you can write here if you want to। देखो, भगत सिंह was tried in which case? भगत सिंह was tried in which case? भगत सिंह was tried in which case? ओके okay? तो यहाँ पे लिख सकते हो एंटी साइमन एजिटेशन, दिस इज जस्ट अ हिंट, एंटी साइमन एजिटेशन, लाला लाजपत राय वॉज किल्ड, ठीक है, सॉन्डर्स वॉज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल, लाला लाजपत राय वॉज किल्ड, सॉन्डर्स वॉज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, और ये घटना कब की है? 1928 की, ठीक है ना। नाउ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड सॉन्डर्स, किल्ड सॉन्डर्स, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड सॉन्डर्स, ठीक है, इन लाहौर, इन लाहौर, assassinated Saunders in Lahore, ठीक है, and then posters, okay, pamphlets were distributed, और पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ था? Beware tyrants, ठीक है, लाला लाजपत राय killing was avenged, avenged, Saunders, ठीक है, was killed, ये पोस्टर लगाया, ठीक है ना। ये है वायलेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से दैट दिस इज लाइक द प्रमोशन ऑफ वायलेंस, आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। लाहौर में घटना हुई तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी इसको बोलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। इन दिस केस लेटर भगत सिंह वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड इन लाहौर जेल, इन दिस केस भगत सिंह वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड इन लाहौर जेल। ये बात आपको समझ में आई? दिस इज द सेकेंड एपिसोड। अब इसमें देयर इज अ थर्ड एपिसोड एंड द थर्ड एपिसोड इज चिटगोंग आर्मरी रेड, ये भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चिटगोंग आर्मरी रेड, चिटगोंग आर्मरी रेड, ठीक है। नाउ कल मैसेज आया कि आज सोसाइटी में कुछ इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का काम होने वाला है, जैसा अभी कट हुआ ना एक बार, ठीक है, तो देयर विल बी फ्रीक्वेंट पावर, ठीक है, डिसरप्शंस। तो मुझे लग रहा है वो प्रोसेस शुरू हो गया, होना तो ऐसे था वो 10:30 या 11 से, बट अभी से स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक दैट वी शुड डिसकंटिन्यू, अभी रोक देना चाहिए, बिकॉज ये अभी विद इन हाफ एन आवर आई थिंक दैट 2 to 3 times there will be power disruption, ठीक है। तो वी आर स्टॉपिंग हियर, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विद चिटगोंग आर्मरी रेड, ठीक है, और उसके बाद आई विल डिस्कस व्हाट, गदर, गदर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके, एंड देन वी विल एंटर इनटू द थर्ड फेज कि भाई सुभाष चंद्र बोस का क्या अप्रोच था, ठीक है ना। ये सारा खत्म होगा तो किस टॉपिक में आएंगे? डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वी विल डिस्कस दिस, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लीडर्स विल डिस्कस, ठीक है ना। तब ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। और करना क्या है, जैसे आपने भगत सिंह और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ा, इसको बुकिश वे में मत रखो, ठीक है, रीड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिस्कस विद समवन कि यह आइडियोलॉजी था, ये आउटलुक था, फर्स्ट पेज में ऐसा डेवलपमेंट था, सेकंड पेज में ये चेंज था, ओके, एंड यू विल फाइंड दैट द सेम आइडिया यू विल बी एबल टू यूज इन एग्जाम, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, एसए में यूज होगा, जीएस के पेपर में यूज होगा, बट अगर आप उसको बुकिश वे में पढ़ोगे ना कि रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, तो फिर एग्जाम में वो काम नहीं आएगा। यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चंस लाइक दिस दैट अनटिल अनलेस you are not familiar with the essence of any topic, you cannot tackle the questions in an effective manner। कुछ ना कुछ तो हर बच्चा लिख के आता है, कोई ऐसा बच्चा होता है कि आंसर में कुछ नहीं लिखता, वो लिखता है, कुछ ना कुछ लिखेगा, बट हियर द स्ट्रगल इज वी शुड राइट, ओके, द रेलेवेंट थिंग्स इन द आंसर, ओके। तो ये चीजें हैं, दैट्स वाई ये पूरे लेक्चर में, अभी इतना ज्यादा लंबा लेक्चर था,
मैंने बाहर की चीजों को ऐड नहीं किया। आई हैव एडेड ओनली व्हाट वी कैन यूज इन आवर एग्जाम। ठीक है ना? तो थोड़ा इस पे टाइम देना आप लोग, और रिमेनिंग पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? हैव यू एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट है? रशिया ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन, चलिए, देयर इज नो एनी क्वेश्चन। तो in next class we will try to finish this part. Okay, are you asking something, Akash? एक minute, let me put on the speakers on करूँ, तब आपकी बात मैं सुन पाऊंगा। हाँ आकाश, you may ask now. Actually, when we talk about the development of socialism ना, है ना, तो there are different streams of this also. इसके भी अलग अलग streams है। On one side you see HRA HSR है, दूसरी तरफ आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ गए ना? मेनी कम्युनिस्ट लीडर्स वर द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेम टाइम। ठीक है? सो व्हेन यू विल रीड द सेकंड पार्ट यू विल गेट द आंसर। ठीक है? कि ये मतलब एक अलग तरीके से काम कर रहा है, और चैलेंज क्या है, ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? ठीक है, ज्यादा बड़ा चैलेंज है, ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए इनको कंट्रोल करना। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सीएसपी बताऊंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बताऊंगा, वो पार्टी की आइडियोलॉजी बताऊंगा। ठीक है? कांग्रेस के साथ वो मिलके काम करते कि नहीं करते, ये बताऊंगा, एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहाँ पे यही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लासेस समझ में आ रही है? जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? देखो, एक एक स्टूडेंट साइकोलॉजी है कि लोगों ने कम पढ़ाने वाला आइडिया को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है ना, कि लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लगेगा सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जितने की एग्जैक्टली आपको एग्जाम में जरूरत है। लेकिन हमें आदत लग चुकी है कम पढ़ने की, ताकि हम 2-3 साल तक आगे पढ़ते रहे, हर बार एग्जाम के पहले 1 महीने हम मॉडर्न इंडिया पढ़े। तो आदत तो वही लग चुकी है। तो मेरा लेक्चर लगने लगता है कि यार कितना ज्यादा पढ़ा रहा है आदमी। मैं उतना पढ़ा रहा हूँ जितनी जरूरत आपको एग्जाम में है। ठीक है? तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है? कि आई एम जस्ट एग्जैक्टली आई एम गाइडिंग यू इन हिस्ट्री, सो दैट आपको दोबारा हिस्ट्री में किसी दूसरे से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है। एक बार हिस्ट्री मुझसे पढ़ोगे, फिर दूसरी बार उनसे पढ़ोगे, तीसरी बार उनसे पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है भाई। ठीक है? इस एग्जाम में अगर आप एक एक टीचर से भी पढ़ो तो भी मिनिमम 1 और 2 ईयर लग सकते हैं। ठीक है? तो मैं तो 2 ईयर्स को एक आइडियल टाइम मानता हूँ फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है? मैं कहता हूँ कि 2 ईयर्स इज द आइडियल टाइम, और हमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने में। फर्स्ट वी शुड रीड द सिलेबस, पीवाईक्यूज पे कमांड किया, तब हमें एग्जाम प्रोसेस में एंटर करना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर द रिजल्ट। ठीक है? मेरी बात समझ गया ना? तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। राइट? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ। हाँ, यस प्लीज। कोई? हाँ, मेंशन। अच्छा, आपने ऊपर लिखा, हाँ हाँ, वो तो मैंने पढ़ लिया था। ठीक है? जब आपने लिखा था मौलाना अबू खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। ठीक है? बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खान की जी भी जर्नी मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है? टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो आगे चल के वो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उनको दी जाती है, एंड आईएनसी विल ऑलवेज टेक गाइडेंस एंड मोटिवेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये नेम्स हैं, आपने ठीक लिखा है। ठीक है ना? तो आपको देखो क्या करना है, व्हेन यू आर रीडिंग ना, तो यू मस्ट नो कि कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स के नाम आपको पता हो, सोशलिस्ट लीडर्स के नाम पता हो। यू मस्ट नो सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम साउथ इंडिया। यू मस्ट नो द नेम ऑफ सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। यू मस्ट नो सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम नॉर्थ।
अगर आपका होम स्टेट महाराष्ट्र है तो वहाँ के कौन से लीडर्स रहे हैं, अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो दिल्ली में कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, राजस्थान है तो क्या राजस्थान में कौन से इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स है। तो इन सारी चीज़ों को गूगल करके हमें जानना चाहिए, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन सडनली एनीवन कैन आस्क अस इन इंटरव्यू ऑल्सो। कि अगर आप राजस्थान से और इंटरव्यू दे रहे हो तो उसने पूछ लिया कि भाई 5 नेम्स बताओ, है ना, फ्रीडम फाइटर्स के जो राजस्थान से आते हैं, और इफ यू विल नॉट, इफ यू विल रिमेन साइलेंट, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा ना। वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए। 5 नेम्स ऑफ द मुस्लिम लीडर्स हु फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, नेम्स ऑफ द हिंदू लीडर्स हु फॉट फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इफ यू विल डू दिस ग्रेजुअली, पढ़ते वक्त अगर हमको पता है अप्रोचेस की, ठीक है, ये टिक लगा लेते हैं, ये दिमाग में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे तैयारी होती है ऐसे। गॉट इट। तो ग्रेजुअली यू विल लर्न, ठीक है, एंड वन बाय वन यू विल डेवलप अ गुड कमांड ऑन योर स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट पे गुड कमांड, दिस इज योर एसेट, ये आपकी पूंजी है। करंट अफेयर रेगुलर अपडेट करना होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसमें वो एक्सेल होता चला जाता है। बट हमारे पास जो हमारा एसेट है, सबसे कीमती एसेट है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो क्या होना चाहिए, फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होगा कि प्रीलिम्स में फाउंडेशन से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, तो लोग कहेंगे अरे यार फाउंडेशन रेलिवेंट नहीं रहा। वो हमेशा रेलिवेंट रहता है, बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हेन यूपीएससी विल चेंज इट्स पैटर्न। पता है क्या आपको, आफ्टर 2 और 3 years दे यूजुअली डू व्हाट, ओके, कुछ ना कुछ उसमें शफल कर ही देते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट डेवलप अ गुड कमांड। अच्छा, व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री, इज इट हेल्पफुल फॉर द अदर एरियाज ऑफ जीएस, ऑब्वियसली। ठीक है, तो व्हेन यू विल थिंक हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री, ठीक है, तो ये डिफिकल्ट लगेगा। हिस्ट्री में तोड़ दो ना इस वर्ड को, हाई स्टोरी, हिस्ट्री, ठीक है, हाई, say hi to story, this is what history. Say hi to the story of Bhagat Singh, say hi to the story of HRA, say hi to the story of HSRA, say hi to the story of revolutionary activities, say hi to the story of Indian National Congress, ठीक है, say hi to स्वदेशी मूवमेंट, say hi to नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो कितना अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच में बदलाव की जरूरत है। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज दिस मच इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। यू कैन मेक ईच एंड एवरी मॉड्यूल इंटरेस्टिंग, ओके, बट उसके लिए आपके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि से हाई टू द सब्जेक्ट, ठीक है, से हाई टू लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो फिर सीख पाओगे। ठीक है, मेरी बात समझ गया ना। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।